Praise the Lord everyone. सभी को जय मसीह की. Today's topic is going to be Are we being obedient? आज का विषय होगा क्या हम आज्ञाकारी हैं. There are 3 points in a few scripture references. टोटल 3 पॉइंट्स होंगे और कुछ भजन के प्रभु के वचन से मैं बांटूंगी. So the first point is that God wants us to obey His word. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन की आज्ञा करें. The scripture reference is from Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 21. व्यवस्था विवरण 5 उसका 7 से 21. It says like this: You must not have any other god but me. You must not make for yourself an idol of any kind, or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not misuse the name of the Lord your God. Observe the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and mother as the Lord your God commanded you. You must not murder. You must not commit adultery. You must not steal. You must not testify falsely against your neighbor. You must not covet your neighbor's wife. You must not covet your neighbor's house or land or anything else that belongs to your neighbor. प्रभु के वचन से इस प्रकार से कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है. तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ. तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उनको निर्दोष ना ठहराएगा. तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो. 17 की आयत. तू हत्या ना करना. 18 तू व्यभिचार ना करना. तू चोरी ना करना. तू किसी के विरुद्ध झूठी साझी ना देना. तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच रखना. The second point is that we are called to be different from the world. हमें अलग बुलाया है इस दुनिया से. The scripture reference is John chapter 17 verses 14 to 18. यूहन्ना 17 उसका 14 से 18. It says, let's see. Okay, it says here 17, John chapter 17 verses 14 to 18. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world.
I am not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. यूहन्ना 17:14-18। मैं ना तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दृष्टि से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। The third point is that sharing his goodness and love to others. उनकी अच्छाई और प्यार हमें सबके साथ बांटना है। The scripture reference is Psalms chapter 128 verse 1। भजन संहिता उसका 128 इस प्रकार से है। It says over here that how joyful are those who fear the Lord, all who follow his ways. Because we know his word, because we know who he is, we'll just read from God's word। हम प्रभु के वचन से भजन संहिता से पढ़ेंगे कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उनके मार्गों पर चलता है। My dear brothers and sisters, this reminds us his goodness, of God's goodness and of his love for us as we read John 3:16, यूहन्ना 3:16। अगर हम वो पढ़ें, we get to know God's nature, which is, for this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. यूहन्ना का 3 इस प्रकार से है 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। My dear brothers and sisters, it is so important for us to understand why we need to be obedient, and the question remains that are we being obedient? प्रभु के वचन से हमें ये समझने को मिलता है कि क्या हम उनके वचन का हम आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं। Are we being accountable to doing what he has told us to do and not to do? क्या हम जिम्मेदारी ये उठा सकते हैं इस बात को कि हम जो परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, जो वो हमें बता रहे हैं, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। As children of God, as his disciples, as his children, as a nation, as the world, we are called for a reason, but because we are set apart from this world, it is important to know that when we are called apart, when we are set apart, हम जब दुनिया से अलग हैं, हमें दुनिया से अलग रखा गया है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, और अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं
तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज वी रीड गॉड्स वर्ड, जैसे हम प्रभु के वचन से हम सीखते हैं और हम अपने जीवन में लागू करते हैं, आई प्रे एंड आई होप दैट we are reminded of the fact that we always need to learn from his word, live a life according to his word. हम हर दिन प्रभु के वचन से ये अपनी ज़िंदगी में लागू करें कि हम अलग क्यों है और हमें किस तरह से जीना चाहिए, हमें किस तरह अपने आप को अलग रखना चाहिए और क्या हम उनका आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं. So I hope this was an encouragement for everyone. I hope this was a reminder for everyone. मैं आशा करती हूँ कि ये एक हमें याद दिलाने वाला वचन होए और हम इसको अपने दिल में बसा के रखें ताकि हम प्रभु की कामों के लिए हम इस्तेमाल हो पाए. So I hope and I bless you all and have a great week ahead. God bless.